Assalamualaikum. Dear students, in today's lecture, we are going to critically analyze a text that is written by Charles Baudrillard, and the name of the text is "The Painter of Modern Life." So, as we already do in our previous lectures, we need to understand something about Charles Baudrillard and the times in which he was writing. Only then will we be in a position to understand these key concepts that are discussed in this text. So first of all, the thing to be understood is that Charles Baudrillard, as far as he was concerned, he was a French poet as well as he was a critic. He was an art critic, and the most important thing to be taken into consideration about Charles Baudrillard, and especially with reference to this text, is that he actually serves as a transition between romanticism and symbolism. We know this thing very well, that romanticism and symbolism, these were artistic movements, and this is what the students of English literature and the students of art, they have already studied. So the importance of Charles Baudrillard lies in the fact that he, you can say, represents the transition, the change from romanticism to symbolism, and he has also written many poems, and the collection of his poems is The Flower of Evil. The Flower of Evil, it is a collection of poems that is written by Charles Baudrillard, and when we read these poems, the thing that we take that we, you can say, learn from his poems is that they are the true representatives of the times in which he was writing. So that is why, in order to understand this particular text, we have to relate it to The Flower of Evil, because we know this thing very well, that good literature is that literature which, you can say, represents the age in which it is produced. There is also, you can say, there is a literary movement that is called New Historicism, and in order to understand these things, we can refer to New Historicism. So The Flower of Evil, this is, you can say, collection of poems, but and you can say the background. First of all, we will be talking about background with modernization and urbanization, commercialization of art. If we study, you can say, France, or apart from France, if we study, you can say, Europe. You know, Europe is a continent, and we need to study it. अगर हम इसके स्टडी करें तो हम इसमें देखते हैं कि जो सोसाइटी इन विच Baudrillard was born, it was rapidly changing, because it was changing from, you can say, from a traditional society to the modernization and urbanization means that, you can say, many cities were developing, people were migrating from their villages or the towns into the cities, and uh, industrial revolution, scientific revolution, these things also, you can say, played a very पिवोटल पार्ट इन दिस रिगार्ड. तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो होते हैं ना, कि अब एक मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में एक तब्दीली आ रही है. उसके साथ देखते हैं लोग जो होते हैं कि दे आर मूविंग फ्राम विलेजेस टू द सिटीज़, और विलेजेस का और जो टाउन्स का जो एक वजूद है वो कम पड़ रहा है, ठीक है. तो अब सोसाइटी में एक तब्दीली आ रही है, मॉडर्नाइज हो रही है. अब इसके बाद और कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट. अब आप देखें कि जो है ना, इस दौर के अंदर जो कैपिटलिज्म की एक फ़िलासफ़ी थी, कैपिटलिज्म की एक थेरी, जो एक इकनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकता इसके अंदर, चूँकि इस लेक्चर की लिमिटेशंस हैं, ठीक है. तो लेकिन आप समझ लें कि यानी जब एक निज़ाम सरमायादारी, निज़ाम कैपिटलिज्म जो होता है, जब वो एक इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर उसके अंदर हर चीज़ एक कोमोडिटी के तौर पे पेश की जाती है. हर चीज़ जो है ना, सरमायादार उसे अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करता है. इस तरह जो है टाइम्स इन विच ही वाज राइटिंग, उसके अंदर जो आर्ट थी, आर्ट जो होता है ना, कि ये ज़ाहिर सरमायादारी निज़ाम क्या करेगा, उसे एक कोमोडिटी के तौर पे, कि आर्ट भी बाकायदा कमर्शलाइज हो रही थी. अब इसकी डिटेल में नहीं जाया जा सकता, चूँकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. तो हम इसको देखते हैं कि अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी इसको हम सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल, एज वी ऑलरेडी डू इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, दैट द पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ. सो यू सी दैट द की वर्ड इज़ पेंटर एंड देन द मॉडर्न लाइफ. अब मॉडर्न लाइफ क्या होती है और पेंटर क्या होता है, ठीक है. अब ये मॉडर्न लाइफ, याद रखें, ये मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि यानी आज की लाइफ मॉडर्न और पीछे वाली मॉडर्न नहीं थी. ये इस एक और कॉन्टेक्स्ट में इसने इस्तेमाल किया है, इसको हम आगे एनालिसिस करेंगे. अब सबसे पहले देखें टाइटल के अंदर एम्फेसिस ऑन मॉडर्निटी. मॉडर्निटी के ऊपर जो होता है ना, उसने एम्फेसाइज किया. लेकिन मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आज फ़र्ज़ करें हम 21st सेंचुरी में रह रहे तो हम ये कहें कि हम मॉडर्न हैं और पिछली एज मॉडर्न नहीं थे, ये मतलब नहीं है, ठीक है. मॉडर्न का जो लफ्ज़ है, मॉडर्निटी का लफ्ज़ है, ये Baudrillard बड़े कम्प्लेक्स वे में डिफ़ाइन करता है, ठीक है. यानी Baudrillard के मुताबिक मॉडर्न वो होता है, मॉडर्न या मॉडर्निटी एक ऐसी चीज़ होता है जो अपनी एज के स्पिरिट को कैप्चर करती है, तो उसे हम मॉडर्न कहते हैं. अब इस लिहाज से अगर देखा जाए, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा जाता है, मैकबेथ पढ़ा जाता है,
या उसका किंग लियर पढ़ा जाता है। इस तरह अलेक्जेंडर पोप की हम द रेप ऑफ द लाक पढ़ते हैं, या इस तरह हम जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं, या हम उर्दू में अमीर खुसरो को पढ़ते हैं, या हम उसमें गालिब को पढ़ते हैं। तो ये देखें, ये मॉडर्न पोइट्स हैं। मॉडर्न हम उनको क्यों कह सकते हैं? अब शेक्सपियर को मॉडर्न क्यों कहा जा सकता है? अगर हम बोद्रीला के मुताबिक इस पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, उसकी वजह ये होती है कि यानी बोद्रीला के मुताबिक मॉडर्न वो होता है, या मॉडर्निटी वो चीज़ होती है जो कि एक एज के स्पिरिट को और वाइटैलिटी को कैप्चर करती है। अब शेक्सपियर का अगर हम हैमलेट पढ़े तो शेक्सपियर क्या करता है, अपने वक्त की जो एक वाइटैलिटी या उसकी जो स्पिरिट होता है उसको कैच करता है, उससे ड्रामे के अंदर नज़र आती है। इस तरह अगर मीर खुसरो को पढ़ें, इवन अब बुल्ले शाह का पढ़ें, बुल्ले शाह को पढ़ें, इवन हम यानी वर्ल्ड लिटरेचर ट्रांसलेशन के अंदर रहमान बाबा को पढ़े, तो आपको यानी उसकी एज का एक स्पिरिट जो होता है ना, उसकी एज का पूरा एक स्पिरिट उनकी यानी शायरी के अंदर उनकी चीज़ों में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एम्फेसिस ऑन मॉडर्निटी, मॉडर्निटी का लफ्ज़ इसलिए एक और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रोल ऑफ द पेंटर। अब पेंटर का रोल क्या होता है? पेंटर का मतलब देखें, उसने यहाँ ही हैज़ यूज द वर्ड पेंटर, लेकिन हम पेंटर को जो था ना एक आर्टिस्ट, एक अम्ब्रेला टर्म है। आर्टिस्ट के समझे कि उसमें पेंटर भी आ जाता है, लिटरेरी राइटर भी आ जाता है, उसके अंदर म्यूजिशियन भी आ जाता है। तो अब आप समझिए कि द रोल ऑफ द पेंटर, एक लिटरेरी राइटर का, पेंटर का, ठीक है, उसका क्या रोल हो सकता है, ठीक है, मॉडर्निटी के अंदर। इसमें बोद्रीला ये बताता है कि जो यानी एक पेंटर होता है, या एक लिटरेरी राइटर होता है, या आर्टिस्ट होता है, सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, तो द पर्पस, द सोल पर्पस ऑफ हिज इज़ टू कैप्चर द स्पिरिट एंड वाइटैलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। अब मॉडर्न लाइफ का मतलब प्लीज़ कीप इन माइंड कि मॉडर्न लाइफ का मतलब ये आज की लाइफ नहीं है। मॉडर्न लाइफ का मतलब सिर्फ, ठीक है, मॉडर्न लाइफ का मतलब है कि हर एज के अंदर जो उसका स्पिरिट होता है, उसके एज का जो वाइटैलिटी होती है, उसे मॉडर्न लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब इसीलिए शेक्सपियर के यहाँ भी मॉडर्न लाइफ है। ठीक है, इसके लिहाज से देखें, मिल्टन के यहाँ भी मॉडर्न लाइफ है, अमीर खुसरो के यहाँ भी मॉडर्न लाइफ है, बुल्ले शाह के यहाँ भी मॉडर्न लाइफ है। ठीक है, तो ये मॉडर्न लाइफ का ये कंसेप्ट इस तरीके से है। अब इसके बाद देखें, इसमें इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि यानी वट एवर हैज़ बिन डिस्कस बाय चार्ल्स बोद्रीला इन दिस टेक्स्ट इट रिलेट्स टू डिफरेंट यू कैन सी जानराज। फॉर एग्जाम्पल, इसने तो ये पोइट्री के बारे में बात की है ना, सॉरी इसके पेंटिंग के बारे में खास तौर पे, लेकिन क्या होता है कि वी कैन बी एबल टू अप्लाई एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और एक्सटेंड दिस कंसेप्ट, ठीक है, टू द अदर यू कैन से जानराज। हम इसमें पोइट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, नावल पे कर सकते हैं, आर्ट की दूसरे डिफरेंट शक्लों के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इसलिए ये सोच। इसके बाद आर्ट एज अ कमोडिटी, मैंने कैपिटलिज्म के हवाले से इसको बात बयान की है कि जब कैपिटलिज्म जो थे, निज़ाम सरमायादारी जब अरूज के ऊपर होता है तो हर चीज़ को कमोडिटी के तौर पे पेश किया जाता है। अब आज आप खुद नहीं देख सकते कि आर्ट होता है, आर्टिस्ट होते हैं, तो वो मतलब एक जो होता है ना कि एक यानी किस तरह एक जो होता है ना कमोडिफिकेशन करते हैं आर्ट की। ठीक है, आप इस चीज़ों की मिसालें आजकल मॉडर्न ब्रांड्स, मॉडर्न क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स देख सकते हैं, मॉडर्न अब चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये इसका टाइटल है। तो टाइटल में ये चीज़ें डिस्कस की, तो इसमें क्योंकि मैंने लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया, मॉडर्न लाइफ का मतलब आज की जस्ट लाइफ नहीं है। मॉडर्न लाइफ का मतलब आज की लाइफ का स्पिरिट, पिछले एज में उसकी लाइफ का स्पिरिट, उससे पिछले एज में उस लाइफ का स्पिरिट। अब हम अगर कहते हैं कि जेफरी चौसर एज अ मॉडर्न पोइट, अब वो मॉडर्न पोइट का मतलब क्या होगा? ठीक है, क्या उसका मतलब, अब हम तो 21वीं सदी में रह रहे हैं ना, ठीक है, तो लेकिन हम उसे मॉडर्न इसलिए कहते हैं जेफरी चौसर की, चूँकि उसने, जैसे आप देखें उसमें वाइफ ऑफ पाथ का करेक्टर नज़र आता है, प्रायरस का नज़र आता है, मंक का नज़र, उसने उस एज के स्पिरिट को जो था ना वो कैप्चर किया है, इसलिए वो मॉडर्न पोइट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहली बात है इसका टाइटल। ठीक है, अब इसमें उसने अपने एसेस को मुख्तलिफ हेडिंग से अंदर डिवाइड किया हुआ। पहली हेडिंग है द एन आर्टिस्ट, मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ प्राउड एंड द चाइल्ड। अब ये वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो होता है ना, सबसे पहले एन आर्टिस्ट क्या है, मैन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, मैन ऑफ द क्राउड क्या है, एंड अ चाइल्ड क्या है। यानी दीज आर एक्चुअली यू कैन से दी एट्रीब्यूट्स और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, यानी हु अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बोद्रीला इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम टेक्स्ट के अंदर से इसकी एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें एक राइटर इसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है MCG। इसका बार तकरीबन समझे कि पूरे इस टेक्स्ट के अंदर जो होता है ना, इसका वो बार बार जिक्र करेगा। ठीक है, अब MCG कौन है? इसका नाम है कॉन्स्टेन गाइज। अब ही वॉज आल्सो फ्रेंच पेंटर। ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। अब जो होता है ना कि यू कैन से दैट इसको, ये जो यानी MCG है या MG कह लें या कॉन्स्टेन गाइज कह लें, ठीक है,
ये जो होता है ना कि इसको एक मेयार के तौर पे, एक यानी स्टैंडर्ड के तौर पे, ठीक है, जो चार्ल्स बौद्रिला है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि हम अगर यानी बहादरी का मेयार क्या है हमारे आगे, बहादरी क्या होती है, तो हम कहते हैं हज़रत अली जो होता है वो बहादरी का मेयार है। इस तरह हमारे सामने एक मेयारात होते हैं, मेयारात तय किए जाते हैं। तो उसने ये बताया है कि चार्ल्स बौद्रिला ये कहते हैं ये जो MCG है, ये जो कॉन्स्टेन गाइज है, ठीक है, इसकी पेंटिंग को, इसके जो पेंटिंग के ऊपर व्यूज़ थे उसको देखकर उसने कहा कि यानी इसकी जो सारी चीज़ें वो मेयार है, ठीक है। जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ के अंदर जो पेंटर का रोल होता है उसका ये मेयार ये चीज़ है। अब इसी को बार बार उसने डिस्कस करने से लिए डेट्स वाई इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं कि इन लफ्ज़ों को एक्सप्लेन करना है जो हमने ऊपर बताया। देखें, उसने कहा था कि आर्टिस्ट क्या होता है, पहली बात जी आर्टिस्ट क्या है, फिर मैन ऑफ वर्ल्ड है, फिर हम इसे, अब आर्टिस्ट की उसकी अपनी एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है कि बाई आर्टिस्ट आई मीन a specialist, a man tied to the pallet like a serf to the soil, ठीक है। कहता है कि अब आर्टिस्ट से मुराद उसकी वो है, ठीक है, कि जिस तरह एक सर्फ होता है ना, इस तरह से काम करने वाला होता है, जिस तरह उसके ज़मीन के साथ लिंक होता है, नहीं ज़मीन से हम उसको अलहदा करके नहीं समझ सकते, इस तरह का आर्टिस्ट जो होता है इसके कलर्स के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है कि आर्टिस्ट उसके मुताबिक जो होता है ना, वट Charles Baudrillard is trying to say is that an artist is a person, ठीक है, who captures the spirit of the age in which she is living, ठीक है। उसकी जो वाइटैलिटी एज होती है उसको अपने कलर्स के ज़रिए क्या करता है, उसको कलर्स के ज़रिए उसे रिप्रेजेंट करता है, उसको यानी उसके कैप्चर करता है, कैप्चर करके कलर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। ये होता है आर्टिस्ट उसके हवाले से। अब आर्टिस्ट जो होता है, ये देखें, ये जो हमने बताया था ना पीछे, हमने MG की बात की है, यानी ये जो राइटर की हमने बात की जिसका बार बार हमने बोला ये जिक्र करेगा, ये जो CG है, ठीक है, CG ये MG अब कह लें, ठीक है। अब ये जो राइटर है उसकी कुछ खसूसियात हैं, ठीक है। अब उसकी पहली खसूसियात उसने बताई है कि वो क्या एक आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट क्यों है, वो इसलिए आर्टिस्ट है कि वो अपने आर्ट के साथ, यानी अपनी जो होता है ना कि जो वो फील करता है, जो वो सेंस जिसको मतलब उसको सेंस करता है, ठीक है, उसको क्या करता है अपने कलर्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट कर देता है, स्पिरिट ऑफ एज को, जो उसके ऊपर एक लम्हा होता है ना, एक टेम्पोरल लम्हा होता है, एक मतलब फ्लीटिंग, एक थोड़ा सा सेकंड या 2 सेकंड के लिए जो उसके अंदर एक यकदम उसके अंदर इंप्रेशन आता है उसे कैप्चर करके वो उसको पेंटिंग कर देता है। तो ये होता है। उसके बाद उसकी खूबी है क्या, मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो चार्ल्स बौद्रिला का जो आर्टिस्ट है वो क्या होना चाहिए कि वो मतलब वो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैन ऑफ द वर्ल्ड हो, जिसे दुनिया का पता ही ना हो, ठीक है। ही शुड बी एबल टू नो अबाउट द वर्ल्ड। अब वो मैन ऑफ द वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन करता है, मैं इसको टेक्स्ट के कोट करूँगा। कहता है बौद्रिला, कहता है बाई मैन ऑफ द वर्ल्ड I mean a man of the whole world, a man who understands the world and mysterious and legitimate reason behind it, ठीक है। अब इसके बाद कहता है he takes an interest in everything all over, he wants to know, understand and assess everything that happens on the surface of our spheroid, ठीक है। वो हमारी मतलब इस कायनात में, हमारी ज़मीन पे जो भी होता है ना, यानी वट एवर इज़ हैपनिंग देयर, उसके पीछे की जो रीज़न होती है, उसके पीछे जो यानी जो एक उसके पीछे छुपा एक स्पिरिट होता है उसको जानता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पहली बात है कि आर्टिस्ट कौन है। अब आर्टिस्ट जो होता है वो मैन ऑफ वर्ल्ड होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि आइसोलेशन के एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो मैन ऑफ वर्ल्ड होता है, वो दुनिया के इदराक करता है, दुनिया को महसूस करता है, ठीक है। एक होता है मैन ऑफ वर्ल्ड, इस डिस्कस किया। इसके बाद देखें कि वो आगे बताते हैं कि मैन ऑफ द क्राउड क्या होता है जी। अब मैन ऑफ द क्राउड बड़े खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखिए इंसान जो होता है, यानी इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है। वो मुआशरे में रहता है, ठीक है, मुआशरे से मटेरियल हासिल करता है, ठीक है। अब जैसे मुआशरे से, सोसाइटी से लोगों के दरमियान रहता है, वो लोगों की को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, लोगों से अपना मटेरियल बनाता है, तो वो मैन ऑफ क्राउड है। वो कहता है मैन ऑफ क्राउड कौन है, उसकी एग्जांपल है द मैन ऑफ क्राउड सिटिंग इन अ कैफे एंड लुकिंग थ्रू द शॉप विंडो, ठीक है, आ कन्वेलेसेंट, ठीक है, इज इंजॉइंग द साइट ऑफ पासिंग क्राउड एंड आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ इन द थाट विद ऑल द थाट्स दैट आर मूविंग अराउंड। अब इसका मतलब होता है कि यानी एक्चुअली द आर्टिस्ट, ठीक है, टेक्स मटेरियल फ्राम द पीपल हु आर अराउंड हिम, ठीक है, यानी वो अपने आप को अलहदा नहीं करता, वो क्या करता है, वो क्राउड के अंदर है, वो मैन ऑफ क्राउड है, ठीक है। ही लिव्स अमंग पीपल, ठीक है, ही लिव्स विद पीपल, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही लिव्स इन अमंग पीपल, वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी को भी बरकरार रखता है, यानी कि अपनी इंफरादियत खो देता है, यानी वो लोगों के दरमियान रहता है, लेकिन लोगों के दरमियान रहने के बावजूद, ठीक है, वो अपनी इंफरादियत का वो प्रचार करता है, ठीक है। और उसका प्रचार कैसे करता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक शायर होता है, वो शायरी के ज़रिए करेगा, पेंटर होगा पेंटिंग के ज़रिए करेगा, म्यूजिशियन होगा म्यूज़िक के ज़रिए करेगा। तो उसमें ये बात बताई गई है कि वो आइडेंटिफाई भी करता है, ठीक है, उन थाट्स के साथ जो थाट्स उसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, यानी हाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे कहते हैं, देखें ये बड़ी खूबसूरत उसने बात है, आगे चाइल्ड का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। अब चाइल्ड क्यों उसने यूज़ किया, देखिए
प्लीज़ कीप इन माइंड दैट वर्ड चाइल्ड इट हैज़ बिन यूज एज अ मेटाफर, इट हैज़ बिन यूज एज अ सिंबल, ठीक है। अब चाइल्ड किसका सिंबल होता है? जो बच्चा होता है। जब हम सारे अपने बचपन की अगर बात करें तो बचपन के अंदर क्या होता है कि हमारे ऊपर चूँकि ज़िम्मेदारियाँ, प्रेशर, मसाइल उस तरह नहीं होते हमारे ऊपर, तो हम क्या, वी आर वेरी क्यूरियस, ठीक है, वी वांट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो हम हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि यानी वन ऑफ द डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट आर सपोज टू बी पोजेस्ड बाय एन आर्टिस्ट इज़ दैट कि वो क्या, तो वो चाइल्ड की तरह होना चाहिए, ठीक है। उसके तजस्सुस होना चाहिए, तजस्सुस जो होता है, ठीक है। तजस्सुस ऐसा जैसे बच्चे के अंदर तजस्सुस होता है, ठीक है, यानी उसमें उसमें बताता है क्यूरियासिटी हैज़ बिकम अ कंपेलिंग इररेसिस्टिबल पैशन, ठीक है। ये उसकी खुद उसके टेक्स्ट मैंने उसको हाईलाइट किया है। तो चाइल्ड, अब इसके बाद फिर देखें चाइल्ड के बारे में एक और बड़ी खूबसूरत बात का, तो कहता है द चाइल्ड सीज एवरीथिंग एज नोवेलिटी, ठीक है। द चाइल्ड इज ऑलवेज ड्रंक, नथिंग इज मोर लाइक वट वी कॉल इंस्पिरेशन दैन द जॉय दैट द चाइल्ड फील्स इन ड्रिंकिंग इन शेप एंड कलर, ठीक है। यानी जो होता है ना कि यानी वट एवर सेंसेशन, ठीक है, दैट अ चाइल्ड हैज़ एट सीइंग द थिंग्स, उसी तरह के जो सेंसेशन होते हैं वही जो होता है, उस तरह की क्यूरियासिटी, उस तरह का तजस्सुस जो होता है वो किसको होना चाहिए? वो एक आर्टिस्ट को होना चाहिए। तो ये चाइल्ड के हवाले से उसने एग्जांपल दिया। अब इसके बाद देखिए फिर उसने चाइल्ड के बारे में एग्जांपल दिया, मैंने हाईलाइट किया, इसके अल्फाज लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। देखिए कहते हैं टू दिस डीप एंड जॉयफुल क्यूरियासिटी मस्ट बी एट्रीब्यूटेड द स्टेट ऑफ एनिमल लाइक इन एक्सटेसी विच ऑल चिल्ड्रन हैव व्हेन कन्फ्रंटेड विद समथिंग न्यू, ठीक है। व्हेन, देखिए जब हम किसी चीज़ को भी, जब हम किसी चीज़ नई चीज़ को देखते हैं, ठीक है, बच्चा देखता है तो बच्चे के अंदर एक अजीब किस्म का तजस्सुस पैदा होता है। कहता है दो सो मस्ट बी द केस विद द आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट हो गया कौन? आर्टिस्ट जो होता है मैन ऑफ क्राउड है, ठीक है, और आर्टिस्ट क्या है, उसके अंदर चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड की हॉबी भी होगी। अब इसके बाद वो कहते हैं, बड़ी खूबसूरत उसने बात की, कहते मैंने बताया कि द चाइल्ड इज़ अ फेमस पेंटर, मेटाफर। अब इसमें उसने मेटाफर के तौर पे यूज़ की, यानी उसने व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ दैट ही हैज़ एक्चुअली ट्राई टू कंपेयर बिटवीन द पेंटर एंड द चाइल्ड, ठीक है। जस्ट एज द चाइल्ड हैज़ एंडलेस क्यूरियासिटी सो द पेंटर इज सपोज टू हैव द एंडलेस क्यूरियासिटी। तो इसलिए ये मेटाफर है जो इसने खुद ये कहा। कहते हैं नीड आई से टुडे दैट चाइल्ड इज़ अ फेमस पेंटर, ठीक है। अब ये खुद ये कह रहा है बोधरीला। अब इसके बाद देखते हैं, ये देखिए आगे उसने ये टर्म यूज़ किया है कन्वलेसेंस, ठीक है। अब कन्वलेसेंस का मतलब, कन्वलेसेंस का लघवी माना तो ये होता है ना कि बीमारी से रिकवरी हासिल करना। जब हम इंसान सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, बीमार हुआ होता है, बीमारी से जब इंसान जो होता है ना एक यानी अच्छी कंडीशन पे जाता है, कन्वलेसेंस होता है ना। लेकिन यहाँ एज फार एज दिस एसे इज कंसर्न, दिस उसके अंदर क्या है, कन्वलेसेंस का क्यूरियासिटी लाइक अ चाइल्ड होनी चाहिए, जीनियस, सेंसिबिलिटी, यानी दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हैड बाय द आर्टिस्ट दैट हैज़ बीन पेंटेड बाय चार्ल्स बोधरीला, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, इनके उसके कन्वलेसेंस होना चाहिए उसके अंदर जो होता है, ठीक है, ये सारे मामला। अब इसके बाद देखिए बड़े खूबसूरत उसने बात की, वो कहता है आई लव पैशन पैशनेटली, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, कहते हैं क्राउड एंड इंस्पिरेशन। पूछिए हमने शुरू से उससे बात की थी कि आर्ट क्या है, सॉरी आर्टिस्ट क्या होता है, वो मैन ऑफ क्राउड है, ठीक है। वो दूसरी बात है क्राउड क्या होता है, उसके लिए क्राउड एज एन इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। क्राउड उसे इंस्पायर करता है, उसके अंदर जज्बा तहरीक पैदा करता है। अब कैसे करता है, बड़ी खूबसूरत ज़बान है उसकी, इसको देखते हैं। वो कहता है द क्राउड इज हिज डोमेन जस्ट एज द एयर इज़ द बर्ड्स एंड द वाटर दैट ऑफ द फिश, ठीक है। फिश जो होता है वाटर के बगैर नहीं जिंदा रह सकती, ठीक है। अब बर्ड जो होता है एयर के बगैर नहीं रह सकता। इस तरह क्राउड क्या होता है, क्राउड का मतलब इसने नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं किया। क्राउड का मतलब उसने ये जो पूरी सराउंडिंग है हमारी, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी है, वाट एवर वी आर सराउंडेड बाई, ठीक है, वो क्राउड कहलाएगा। यानी क्राउड का हजूम के उस मीनिंग में उसने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो वो कहता है कि यानी इस तरह ज़रूरी है। हिज पैशन एंड हिज प्रोफेशन इज़ टू मर्ज अप विद द क्राउड, ठीक है। फॉर द परफेक्ट आइडलर, फॉर द पैशनेट ऑब्जर्वर, ठीक है, इट बिकम्स एन इमेंस सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट टू establish his dwelling in the throng, okay, in the ebb, in the flow, in the bustle, in the fleeting and the infinite. What a beautiful language that has been used by Charles Baudrillard in order to talk about a crowd, how crowd has is an inspiration, ठीक है। तो यानी देखें ना, हम क्राउड से इंस्पिरेशन लेते हैं। क्राउड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, उसको हम क्राउड कहेंगे। हम मतलब इसके नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आगे देखें, वो कहता है कि क्राउड क्या फिर इसके बाद कहते हैं एक आइडिया था द लवर ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ। अब इसका जो आर्टिस्ट है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने देखा उसमें चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा कि यानी वो जो होता है वो एक क्राउड के अंदर रहता है। दूसरी बात हमने आगे देखी, ठीक है, कि आगे क्या था द लवर ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ। एक यूनिवर्सल लाइफ अब क्या होती है, कहते हैं 10
ठीक है। द लवर ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ मूव्स टू द क्राउड इनटू द क्राउड एज दो इनटू एनॉर्मस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप देखें कितनी उसमें कहता है कि मतलब जो एक आर्टिस्ट होता है ना, ठीक है, एक यूनिवर्सल लाइफ है, यानी वो जो क्राउड होता है ना, क्राउड का मतलब होता है कि वाट एवर इज हैपनिंग अराउंड हिम, ठीक है, वो उसके लिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के करंट के तौर पे काम करे, यानी उसके अंदर, ठीक है। तो वो उसके ज़रिए क्या करता है, उसके ज़रिए फिर अपनी वो पेंटिंग करता है। अब इसको अगर मिसाल के तौर पे देखते हैं कि द लवर ऑफ यूनिवर्सल लाइफ का मतलब ये हुआ कि यानी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा था, जब उसे कैप्चर किया जाता है तो वो मतलब एक लम्हा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसके हवाले से हम बात करते, आगे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं मॉडर्निटी। देखा आपने, यू हैव आल्सो सीन इन द टाइटल दैट द टाइटल इज द पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब मॉडर्न का मतलब मॉडर्निटी भी, तो मैंने पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी का मतलब होता है जदीद, ठीक है, और उसका पीछे का मतलब इसका उल्ट एंटिक्विटी होता है, उस सेंस में इसने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। उसने इस सेंस में इस्तेमाल, मॉडर्निटी हर एज का फीचर होता है, हर एज का फीचर होता है जो उस एज की वाइटलिटी को उसके स्पिरिट को कैप्चर, उसे मॉडर्निटी कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, तो वो कहते हैं एन इनडिफाइनेबल एसेंस और क्वालिटी इनहेरेंट इन द स्पिरिट ऑफ द टाइम। ये डेफिनेशन है, ये दिस डेफिनेशन इज नॉट अ डिक्शनरी डेफिनेशन, ये बुद्रीला ने जो खुद उसको डिफाइन किया, मैंने उसको लिखा है कि एन इनडिफाइनेबल एसेंस और क्वालिटी इनहेरेंट इन द स्पिरिट ऑफ टाइम। कहते हैं एक जो वक्त होता है उसके स्पिरिट के अंदर, वक्त के अंदर जो उसके अंदर एक उसका एसेंस होता है, उसका जो जौहर होता है, उसका निचोड़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडर्निटी, ठीक है। इसीलिए आज जो होता है कि आज कौन से मॉडर्न पोइट होंगे, शेक्सपियर एक मॉडर्न पोइट है, एक मॉडर्न ड्रामाटिस्ट है, जॉन मिल्टन जो होता है एक मॉडर्न जो होता है ना पोइट है, वो इस सेंस में है चूँकि अपनी एज के जो स्पिरिट होता है उसके अंदर, यानी वो जो होता है ना कि लामहला तौर पर नज़र आता है। आप खुद देखें कि जब मिल्टन सेतन की स्पीचेस करवाता है, 5 स्पीचेस जो हैं, तो सेतन जिस तरीके के साथ वो वोकैबुलरी उस एज की आ जाती है, जिस तरीके के साथ उस एज की सारी चीज़ें हमें नज़र आती है, तो ये होता है कि मॉडर्निटी, ठीक है। अब देखिए उसने एक डिफाइन किया, कहता है ही इज़ लुकिंग, ही कौन है, ही का मतलब होता है वो जो आर्टिस्ट है, ठीक है, ही इज़ लुकिंग फॉर द इनडिफाइनेबल समथिंग, ठीक है, दैट वी मे कॉल मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी को मैंने ऊपर डिफाइन कर दी इसी के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सिंपल लैंग्वेज। अब इसके बाद देखें, कुछ पोइट्स होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ पेंटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, माजी की तस्वीरें, माजी के जो वर्क्स होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ही ज़्यादा कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, यानी उनकी तरह होने की कोशिश करते हैं। अब जो होता है ना, इसका हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, अब यहाँ क्या करता है, व्हाट बाउड्रिला डज इज़ दैट कि ही गिव्स सम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ठीक है। वो कहते हैं ऑलमोस्ट all of them use the fashion and the furnishing of the Renaissance as David used Roman fashion and furnishing। अच्छा, इसमें जो था ना वो क्या कर रहा है, वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, ये उसके फेवर में नहीं है, ये उसको लाइक नहीं करता। ये कहता है कि एक जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को जो लम्हा मौजूद होता है, जो यानी प्रेजेंट लम्हा होता है, लम्हा मौजूद को उसने कैप्चर करना है, ठीक है। उसे ये नहीं है कि बिल्कुल माजी की चीज़ों को लिया और उसी फैशन के ऊपर करते गए। अगर उस फैशन के ऊपर करते जाएंगे तो फिर इसका मतलब आर्ट जो होता है, आर्ट इज समथिंग दैट विल बी स्टेटिक, ठीक है। लेकिन आर्ट क्या होती है, वो एक डायनामिक चीज़ होती है, वो तो आर्ट के अंदर एक तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, एक आर्ट यानी बदलती है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस, अब उसमें मैंने ये आगे लिखा है, देखिए मैंने फुटनोट इसमें एनोटेशन में लिखा है, Baudrillard criticizes the imitation of the past. He endorses that artist should capture the vitality and the spirit of his own age। यानी अपने एज का जो स्पिरिट होता है, अपने एज की जो कि उसको लेके आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जो होता है ना कि सिर्फ पास्ट को करते गए, पास्ट की तस्वीरों को, पास्ट की जो पेंटिंग्स होती हैं उसके ऊपर उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है। क्रिटिसाइज क्या कहता है, दिस इज़ एविडेंट शीट लेजीनेस, कहता है ये एक लेजीनेस है, देखें आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं मॉडर्निटी जी क्या होती है, कहते हैं मॉडर्निटी इज ट्रांसिएंट, ठीक है, द फ्लीटिंग, ठीक है। अब वो कैसे होती है, वो इस लिहाज से होती है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि यानी लम्हा मौजूद को कैप्चर करना, जो लम्हा मौजूद के स्पिरिट को, लम्हा मौजूद को निचोड़ लेना। यानी जैसे मिसाल के तौर पे कि हम यानी ये कोई लीमू वगैरह या उसका रस निचोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके सारे एक एसेंस जो होता है कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि यानी व्हाट द आर्टिस्ट इज सपोज टू डू इज़ दैट कि ही शुड गेट द एसेंस ऑफ द लम्हा मौजूद, ठीक है, द प्रेजेंट, ठीक है, इससे मॉडर्निटी कहा जाता है, ठीक है। अब कहते हैं मॉडर्निटी इन द पास्ट,
क्या मॉडर्निटी पास में नहीं होती? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्निटी और एंटिक्विटी इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, पास में भी मॉडर्निटी कैसे कहते हैं, देयर वाज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी फॉर एवरी पेंटर ऑफ द पास्ट। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द फाइन पोर्ट्रेट दैट रिमेन अस फ्रॉम फॉर्मल टाइम्स आर क्लॉथेड इन द ड्रेस ऑफ देयर ओन डे। ठीक है, देखा ना, ये बता रहा है कि यानी उस वक्त जो थी, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम मेडिवल एजेस की किसी पिक्चर्स की, किसी मतलब पेंटिंग की बात करें, शायरी की बात करें, तो उस वक्त की लाइफ हमें नज़र आती है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसमें मुझे लग रही है वो जेफरी चौसर की द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है। उसके अंदर जितने किरदार हमें नज़र आते हैं, उसमें मंक नज़र आता है, उसके अंदर हमें प्राइडस है, वाइफ ऑफ बात, वो उसी तरह की ड्रेसिंग, उसी तरह, यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी एज जो चौसर की एज थी, जैसे हमारे सामने नज़र आ रही है, हमारे सामने एक पिक्चर बन रही होती है। ठीक है, तो ये तो मॉडर्निटी इन द पास्ट। ठीक है, तो पास्ट जो था वो भी मॉडर्न हो सकता है। देखिए अब अजीब बात हो रही है ना कि यानी हाउ कैन पास्ट बी मॉडर्न? ठीक है, पास्ट कैन डेफिनेटली बी मॉडर्न। ठीक है, इफ़ द राइटर्स, इफ़ द पेंटर्स, ठीक है, इन द पास्ट दे वुड बी एबल टू कैप्चर, ठीक है, द सेंसेशन, ठीक है, दैट द फील फ्राम द उस वक्त की जो सेंसेशन होती है प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट से मुराद पास के वक्त। जब चौसर क्या करता है, जेफरी चौसर भी अपने वक्त के स्पिरिट को वो जो है बिल्कुल एलेबोरेट करता है। तो ये भी इसका मतलब क्या हुआ। अब इसके बाद देखें, आपने पढ़े वो कहते हैं दस द गुडनेस द निम्फ एंड द सुल्तान्स ऑफ द 18th सेंचुरी आर पोर्ट्रेट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द। ये देखें ना, अगर हम 18वीं सदी का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें सुल्तान्स, इसके बाद निम्फ्स, रेप ऑफ द ला का पढ़ते थे, यानी सारी चीज़ें उस स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब वो भी मॉडर्न पोइम्स हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्निटी का कंसेप्ट है। इसके बाद उसने फिर बताया कि जी मॉडर्निटी एंड एंटिक्विटी का, इन शॉर्ट, इन ऑर्डर डैट एनी फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी मे बी वर्दी ऑफ बिकमिंग एंटिक्विटी, द मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ अनइंटेंशनली पुट्स इनटू मस्ट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर उसने ये बार बार क्या बताया कि ये एम जी जो था ना, ये जो पेंटर है उसके अंदर ही चीज़ें है। यानी पहले हमने शुरू में बात की कि एम जी जो होता है वो एक म्यार के तौर पे इसकी हैसियत रखता है, इसलिए उसको बार बार वो बयान कर रहा है। अब आगे इसका आता है, फिर उसका क्रिटिसिज्म देखे, जैसे कि मैंने ये इसको आप दोबारा इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये हाईलाइटेड पोर्शन को। इसके बाद देखते हैं आगे एक टर्म आती है द डेंडी। ठीक है, अब डेंडी का मतलब क्या होता है? अब डेंडी का मतलब अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में लिखें ना, सिंपल अल्फाज में देखें, एक जो आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट को अपनी एक इंडिविजुअलिटी बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, आर्टिस्ट को जो होता है ना, मेयरली जो होता है, आर्टिस्ट मॉडर्न कैसे हो सकता है? पहले हमने बात की कि मॉडर्न कैसे हो सकता है कि जब वो अपने एज के स्पिरिट को कैप्चर करता है। ठीक है, जब वो पास को बिल्कुल जो होता है ना, यानी बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करता, लेकिन ये नहीं मतलब कि पास के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं करना शुरू कर देता। हाँ, पास से इंस्पिरेशन ले सकता है, लेकिन उसका जो था ना, उसका जो लम्हा मौजूद होता है, उसका जो प्रेजेंट होता है, उसको जब बहुत उसको जो यानी उसको जो फील करता है, फिर उसको कैप्चर करता है। ठीक है, तो वो होता है। अब वो कहता है कि डेंडी क्या होता है कि एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस एंड एडहेरेंस टू मॉडर्निटी। ठीक है, अब एक जो मतलब इसको देखते हैं, इसको कैसे वो बयान करते हैं। वो कहता है कि द वेल्दी मैन हु ब्लेस though he may be, ठीक है, has no conception in life to chase along the highway of happiness, the man nurtured in luxury, habituated from early youth to being obeyed by others। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसका जो यानी डेंडी जो होता है ना, डेंडी एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो कि समझे कि जो रवायती चीज़ें होती हैं ना, रवायती जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो रेसिस्ट करता है। ठीक है, एंड उन बातों को नहीं मानता। ठीक है, और ये जो होता है ना, उसका एक अपना कोड ऑफ लाइफ होता है। इसका मतलब कि आर्टिस्ट जो होता है, एक पेंटर होता है, एक पोइट होता है, उसके एक अपना कोड ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है, यानी वो जो होता है ना, वो क्या करता है कि ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल जो होता है ना वो रवायती हो जाए, वो ट्रेडिशनल हो जाए। ठीक है ना, और उसी को लेके चले। ठीक है, जैसे कि देखें ना, अब हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रेडिशन का पता ना हो। अब अगर आप एक ऐसे पढ़े ना, आप टी.एस. एलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल टैलेंट जो होता है ना, ट्रेडिशन से ही पनपता है। ठीक है, तो शायद वो थोड़ी डिफरेंट बात है, इसकी थोड़ी डिफरेंट बात है। कहते हैं डेंडीज़म क्या होता है? डेंडीज़म इज़ एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द लॉ, हैज़ रिगरस कोड ऑफ लॉज। जैसे मैंने बता दिया, तो सादा अल्फाज में भी एक ऐसा कि डेंडीज़म या डेंडी क्या है, ये जो है रेसिस्टेंस का सिंबल होता है, और मॉडर्निटी की तरफ जो होता है ना, ये एडहियर करता है। ठीक है, ये बात है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, वो एग्जांपल भी काफ़ी ज़्यादा देता है। ठीक है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल जी, अगर इफ़ आई स्पीक ऑफ लव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेंडीज़म, अगर डेंडीज़म के हवाले से वो लव की बात करे, द रीज़न इज़ दैट लव इज़ अ नेचुरल ऑक्यूपेशन ऑफ मैन ऑफ लेयर। ठीक है, बट डेंडी डज नॉट कंसिडर लव एज अ स्पेशल एम ऑफ लाइफ। इफ़ आई हैव मैंशन मनी, ठीक है, द रीज़न इज़ दैट मनी इज़ इंडिस्पेंसिबल टू दोज हु मेक एक्सक्लूसिव कल्ट ऑफ देयर पैशन, बट द डेंडी डज नॉट एस्पायर टू वेल्थ एज एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, देखिए मतलब आम जिंदगी में लोग क्या करते हैं,
ठीक है, दौलत को जो होता है ना, ठीक है, या लव को जो होता है ना ऑल तरह से इस्तेमाल कर, लेकिन डेंडी जो होता है इसका जो मौक़िफ़ होता है लव की तरफ या दौलत की तरफ ये एक और होता है, ठीक है। यानी व्हाट डेंडी डज इज़ दैट, ये देखकर लिखा भी हुआ है कि वो वेल्थ को जो होता है ना कि ज़रूरत समझता है, वेल्थ को जो होता है ना एक ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ नहीं समझता, ठीक है। यानी उसको जो होता है ना कि किसी चीज़ का ज़रिया समझ सकता है, मनी को वो बजाते खुद जो होता है कि एक यानी एंड इन सेल्फ नहीं समझता, ठीक है। आगे कॉन्ट्रेरी टू व्हाट ए लॉट ऑफ थॉटलेस पीपल seem to dandyism is not an excessive delight in clothes and material elegance. For the perfect dandy, these things are no more than the symbol of aristocratic superiority in his mind. यानी देखें आमतौर पे जो अरिस्टोक्रेसी होती है पुराने ज़माने में, आपको पता है कि अरिस्टोक्रेसी जिसे इशराफिया का निज़ाम हम कहते हैं, उसमें कपड़े नुमाइश ये वगैरह चीज़ें ये स्टेटस सिंबल समझी जाती है। तो डेंडी जो होता है वो इन चीज़ों को एक एलिगेंट समझेगा, लेकिन जो होता है ना स्टेटस का सिंबल नहीं समझेगा, सुपीरियरिटी ऑफ माइंड नहीं समझेगा। यानी इसमें से कि बार बार ये बात आएगा, असल में डेंडी का आइडिया क्या है कि डेंडी जो होता है कि ही वुड बी एबल टू डू, ठीक है, द थिंग्स दैट नॉर्मली दैट नॉट नॉर्मली डन बाय सोसाइटी, ठीक है। तो ये इसमें इसका ये आइडिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि डेंडी को उसने क्या किया, क्लियरली देन डेंडीइज्म इन सर्टन रिस्पेक्ट्स कम्स टू क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्टोइसिज्म, ठीक है। अच्छा, अब स्टोइसिज्म क्या होता है? स्टोइसिज्म एक फिलासफी है, स्टोइसिज्म और फिलासफी डैट वाज प्रोपोनेटेड बाय ज़ीनो, ये ज़ीनो था। अब स्टोइसिज्म का मतलब ये होता है, ये स्टोइक रेजिग्नेशन या स्टोइसिज्म का मतलब होता है कि हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम आते हैं, मुश्किलात आते हैं, ठीक है। तो हमें यानी मुश्किलात होते भी, गम होते भी, हमें क्या करना है, हमें जो होता है ना कि उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब वो डेंडी को उसके साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। वो कहता है डेंडी को जो था ना यानी स्टोइसिज्म के साथ या स्पिरिचुअलिटी के साथ कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो डेंडी होता है ना इसका मतलब थोड़ा सा इसने और सेंस में इस्तेमाल किया। वो कहता है कि वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपने अंदर जो उसके अंदर सफरिंग भी हो, गम भी हो ना, ठीक है, लेकिन उसकी जो ज़ाहर होता है ना, उसके जो ज़ाहर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक वक़ार, एक एलिगेंस, एक मतलब किस्म की समझे कि एक वक़ार नज़र आता है, ठीक है। तो ये उसमें उसके हवाले से बता रहे हैं कि स्टोइसिज्म के साथ उसने कंपेयर किया। स्टोइसिज्म का वैसे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट होता है, अब इस लेक्चर का इतनी टाइम नहीं तो मैं इसको डिस्कस कर सकता था, ठीक है। अब इसके यानी बुनियादी जो कंसेप्ट है ना ये हमने डिस्कस किया। तो अगर हम इस समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि द पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब इसमें पेंटर का मतलब क्या था, वो हर आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि मॉडर्न लाइफ मैंने पहले बताया, फिर इसके बाद देखें कि मैन ऑफ क्राउड है, फिर इसके बाद जो था लवर ऑफ यूनिवर्स है, फिर इसके बाद वो मॉडर्न है, वो कैसे है, वो किस तरह से है। तो ये दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस। तो जो हाईलाइटेड ये पोर्शन है टेक्स्ट का, इसको आप अपने एग्जाम्स के अंदर बतौर कोटेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।